ये वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम को केल माइक्रोविजन 5 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कैसे रन करते हैं और कैसे डिबग करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं। इट इज ए प्रोग्राम टू ऐड कंटेंट ऑफ ए मेमोरी लोकेशन 21H to content of a register R4 and save the result in RAM location 25H. Further, send the result and its complement to port 0 and port 3 respectively. Let us assume that AT89S51 microcontroller is used with a crystal oscillator of frequency 11.0592 MHz. Here is the program. The first statement indicates that our program will start from memory location 00H in code memory. In second instruction, the content of memory location 21H is transferred to accumulator. Then content of register R4 is added with register A. Then the answer is saved in memory location 25H and the same is also sent to port 0. Then answer is complemented and then it is sent to port 3. So this is a simple microcontroller program. We will run this program in Keil Microvision 5 IDE and see how can we examine content of memory locations, IO ports and registers. Let us open the IDE. First we will go to the project option. Then we will select new microvision project. We will give name to our project. Let us say E51. Save it. Here we have to specify the microcontroller to be used. In this case I am writing AT89S51. So some description about AT89S51 microcontroller is available in this area. Then we set up the crystal oscillator frequency from this option for target. Here instead of 33 MHz frequency we will write 11.0592 MHz and press OK. Once this is completed, we will open a new ASM file and we can give any name. Let it be E51. Extension will be .A51. We add this file to our project. Now this is the text editor. We can type our program in this area, but as I have already typed the code, I am copying the code from the text editor from Notepad and paste it at this point.
and save it. So now our program is ready. We will first build our project. For that we have to go to project tab and then we will build target. Here in build output window we can see the program has successfully compiled with 0 errors and 0 warnings. If I had made any mistake, let us assume that we have forgotten this A. So now there is an error in this instruction. We again build target, rebuild all target files, and we can see that target not created. That means there are some errors. Here it is shown that in line number 7 error A38 is present. Number of operands does not match instructions. मतलब कि इंस्ट्रक्शन में जितने ऑपरेंड होने चाहिए उतने ऑपरेंड्स अवेलेबल नहीं है. So I am making correction over here. Now again प्रोजेक्ट में जाके हम रीबिल्ड करते हैं और 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स अभी प्रोग्राम में है. इसके बाद प्रोग्राम को डिबग करने के लिए, रन करने के लिए हमें डिबग सेशन स्टार्ट करना होगा. यहाँ क्लिक करने से डिबग सेशन स्टार्ट होगा. अभी ये लाइसेंस वर्जन नहीं है लेकिन इवैल्यूएशन मोड में फ्री वर्जन अवेलेबल है और इसमें हम 2 KB लिमिट तक के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसकी साइज 2 KB से कम होनी चाहिए. अभी हम डीबग मोड में हैं और 1 by 1 हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे. कैसे? डीबग में जाएंगे और इस टैब में ऑपरेट करेंगे F11 प्रेस करके. इससे पहले हमें 21 मेमोरी लोकेशन में कुछ डेटा डालना होगा, R4 में कुछ डेटा डालना होगा और हमें P0 और P3 ये दोनों पोर्ट पर आउटपुट देखना है. तो ये दोनों पोर्ट हम पहले स्क्रीन पर ला देते हैं. पेरिफेरल्स में जाके IO पोर्ट में पोर्ट 0 सिलेक्ट करते हैं और इसको साइड में रख देते हैं. सिमिलरली पोर्ट 3 के लिए IO पोर्ट में जाके पोर्ट 3 को सिलेक्ट कर देते हैं. अभी हम देखते हैं कि पोर्ट 0 में अभी आउटपुट FF है, मतलब कि सारे बिट 1 1 1 1 1 1 1 1 है. सिमिलरली पोर्ट 3 में भी FF आउटपुट है. ये बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट FF रहता है. अभी मेमोरी लोकेशन 21 में हमें कुछ डेटा एंटर करना है. तो व्यू में जाके मेमोरी विंडो प्रेस करके मेमोरी 1 सिलेक्ट करते हैं. अगेन हम फिर से करेंगे. व्यू में जाके मेमोरी विंडो मेमोरी 1. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेमोरी विंडो ओपन हुई है और उसमें हम रैम को एक्सेस करने के लिए D:0 टाइप करते हैं. तो यहाँ पे हमें सारे मेमोरी लोकेशंस के डेटा अभी दिखाई दे रहे हैं.
फर्स्ट डेटा 00 मेमोरी लोकेशन का इंडिकेशन है, उसमें 00 है। 01 मेमोरी लोकेशन में भी 00 है। 02 लोकेशन में भी डेटा 00 है। इसी तरह आगे जाएंगे तो हमें लास्ट में ए वाला लोकेशन होगा 17। 17 के बाद 18 सेकंड लाइन में आता है, 19 1A 1B और इसी तरह आगे जाएगा। हम इसको रिसाइज करेंगे तो ये बाउंड्रीज चेंज हो जाएगी, जैसे कि अभी मैंने साइज चेंज की तो यहाँ पे 00 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होके 16 डेटा पहली लाइन में बताया गया है। मतलब कि 16 मेमोरी लोकेशन के सभी 16 लोकेशन में सभी में डेटा 00 है। 10 11 12 13 ऐसे करके अगर हम आगे जाते हैं तो लास्ट लोकेशन होगा 1F। इसके बाद आएगा 20 21 22 23 24 25 एंड सो ऑन। हमें सबसे पहले 21 में कोई एक रैंडम डेटा सेव करना है, तो 20 नंबर वाली लाइन में ये फर्स्ट लोकेशन है, 20 लोकेशन है। नेक्स्ट है 21 लोकेशन, 21st लोकेशन। यहाँ पे हमें कुछ डेटा एंटर कर देते हैं। सपोज इट इज़ 34। अभी हमने 21 नंबर के मेमोरी लोकेशन में 34 डेटा एंटर किया है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो 34 डेटा रजिस्टर ए में मूव हो जाएगा। सिमिलरली R4 में भी हमें कुछ डेटा एंटर करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के सारे रजिस्टर्स R0, R1, R2 अप टू R7। R4 में हम कुछ डेटा एंटर कर देते हैं। लेट इट बी 15 एंटर हमने किया है। 15 मीन्स 0F। हम सिंपल डेटा एंटर करते हैं 05। R4 में हमने 05 एंटर किया है, तो वो वैल्यू एक ही कंटेंट से ऐड होगी और फिर मेमोरी लोकेशन 25, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इस लोकेशन में आंसर सेव होगा। उसके बाद एक ही वैल्यू पोर्ट 0 पे दिखाई देगी। ये पोर्ट 0 है, यहाँ हमें एक ही वैल्यू दिखाई देगी, आंसर दिखाई देगा। फिर उसके बाद ए को कम्प्लीमेंट करते हैं। 8 बिट डेटा है, उसमें 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे, 0 से 1 रिप्लेस होगा और इसी तरह जो भी आंसर आएगा उसको हम पोर्ट 3 पे मूव करते हैं, तो वो आंसर कम्प्लीमेंटेड वैल्यू पोर्ट 3 पर दिखाई देगी। अभी हम एक्सिक्यूट करेंगे प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। डीबग में जाके हम स्टेप प्रेस करते हैं। ये ग्रीन इंडिकेशन बताता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है। कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 21 that is 34 is moved to register A. We can see here A contains 34. Now we will add content of R4 to A. So in order to execute this instruction, we again press step option. So answer is now 39, and now 39
will be moved to memory location 25 here somewhere here. डिबग में जाके स्टेप इंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 39 इस मेमोरी लोकेशन में आ गया है। अभी फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। पोर्ट ए में भी अभी 39 आ गया है 00111001, जबकि पोर्ट 3 में अभी भी FF डेटा है। अब ए को कंप्लीमेंट करते हैं अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके, तो कंप्लीमेंट होके आंसर C6 आ गया है एक्यूमुलेटर में, और उसको पोर्ट में डिस्प्ले करने के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं और हम देख सकते हैं कि पोर्ट 3 में C6 आ गया है 11000110, जो कि ऊपर वाले पोर्ट 0 का कंप्लीमेंट है। डीबग मोड को स्टॉप कर देंगे और कुछ एडिंग चेंजेस करना है तो एडिट मोड में कर सकते हैं। डिबग मोड में हम प्रोग्राम में चेंज नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।